state and national level, like ILO, UNDA, UNICEF, USID, and Commonwealth secretaries. Improving entrepreneurs and business performance programs, also having the very important incorporation in startup monitoring and promotion activities. He is at advisor and visiting faculty like AMA and EDII Gandhinagar, then National Institute of Fashion Technology NIFT, Charotar University, and Indian Institute of Management IIM. Like such type of nominal institutes are having the major contribution in a field of entrepreneurship and innovation. Sir had involved in series of entrepreneurship and training courses program organized by various reputed institutions like NEM, IFC, ISTB, IIM, etc. Sir has published many books and papers on entrepreneurship development. With this short introduction, I would like to request Sir for the further lecture and session and give us the some glimpse of your knowledge about the entrepreneurship. Please, sir. Thank you, Gurgaben, Hilalbayan, and all our dear faculty members and dear students. It's a great pleasure to get associated with Arihant. Of course, I've been associated with Arihant since long, almost I could say about 5, 7, 8 years or so. And I know the entrepreneurial and innovation work that you are doing. So I would like to first congratulate all faculty members and the head of the department for having initiated this thing. But this is a continuous activity. You know, innovation and entrepreneurship never dies, but the problem is how to start, how to ignite. Hmm? We want everyone to think innovatively. We want many people to become entrepreneur, and we try at education level. But within the education, I think students have a lot of aspiration. Faculty have a lot of responsibility. So entrepreneurship and innovation, in spite of its important, gets little less attention. And this is, I think, not your fault. I'm not saying that this is not been done. Now I think our heroines are students, and if we can do something with them, if we can motivate them, if we can make them think like an entrepreneur, if we can make them think like innovator, then I think our all problems will be solved. And this is going to be a teamwork. It is not faculty versus student or faculty versus student versus management. It's all of us will have to work in one direction. And that is where I think the creating the culture, like you said, I appreciate that. The creating culture of innovation and entrepreneurship within the institute is very much important. First thing I would like to say is that the entrepreneurship and innovation is not a subject. ये कोई विषय नहीं. हाँ? It is a mindset. It is a commitment. It is an involvement. It is a lifestyle. Huh? It is a personality. And if you have the entrepreneurial mindset, entrepreneurial thinking, I'm sure wherever you go, whether you become entrepreneur or not, wherever you go for work in industry, corporate, you will be acting as an entrepreneur. Oh, just a minute. Sorry, no? Nobody is there, and some courier came, so there was some confusion. Okay, so I think what I'm going to share with you is how many students are there we have. Sir, around 53. Okay, and how do I share my PPT? Let me try. I want to share my PPT. How do I share? Sharing Share screen. Share screen. I guess. window, or how do I share? Your entire screen or window? Share screen. Screen चलता है सर. Entire screen. हाँ नीचे वो एरो वाला है ना. I did that. But then where is my PPT? सरल है और ऐसे बोला हूँ. Okay. Entire screen. Entire screen I did, but then sharing I do it. No problem.
What I'm going to do is I want to talk to you and make it a little participatory. Hmm? I don't know how. Am I audible? Yes, sir. Yes. Okay. Okay. ये मैंने PPT शेयर करनी से जो खुली रहती है। Okay. So I wanted to find out how many participants from some participant. What is the aspiration you have? You are studying pharmacy, whatever B Farm, M Farm. Hmm? So what is your vision? What do you want to do? Any student can tell me. Student, please unmute yourself and you can answer directly. Huh? Is my PPT visible now? Yes, sir. Okay, okay, okay. Thank you. Any student? Okay, let me ask you very specific thing. Hmm? सर एक लिंक भेज Now you are studying maybe in second semester, maybe in fourth semester, maybe in final semester, whatever semester you are there. Now I want all of you to think today is 2022 July, right? I want you to think July 2027 लिंक पर जाकर after 5 years. क्लिक करना है ऐसा In देखो July ऐसा ऊपर होता है कि नहीं 2027, registration form, ये check करना think है। what you are doing and where will you be. Just give me some idea of your dream, idea of your aspiration, idea of what you want to achieve, idea of what you want to do. Huh? After 5 years, what you may have achieved, where will you be, what are you doing. Any student? In July 2022, we are talking of this lecture on mindset of entrepreneurship and innovation in pharma sector. But I want you to think in 2027 July, what are you doing? Can anyone tell me? थर्ड पेज पर देखो रजिस्ट्रेशन लिंक करके है थर्ड पेज पर। Come on, આમાં કશું સાચું ખોટું છે નહીં. હા, entrepreneurshipમાં એક પ્રિન્સિપલ એવો છે કે કશું સાચું ખોટું નથી. તમે કરો એ સાચું. અને પછી તમને ખબર પડે કે તમે ખોટું કર્યું છે એટલે તમે એને સરખું કરી નાખો એટલે સાચું થઈ જાય. So don't worry, this is not an exam. Quickly. थर्ड पेज पर ये रहा ना लिंक। છોકરાઓ બોલતા નથી, ઘણું બોલે છે એવું તો મેં સાંભળ્યું છે. Student, please answer. Whatever you understand, you can speak with sir. તમે आई थिंक गुजराती में पण समझाव्યું છે, हिंदी में पण समझाव्યું। आप 5 साल के बाद जुलाई में 2027 में क्या करते होंगे, कहाँ पहुंचे होंगे, क्या हासिल किया होगा, શું મેળવ્યું હશે, શું કરતા હશો, ક્યાં હશો, એ જ મારે જાણવું છે. તમારે વિચારો છે, અત્યારે તો પહોંચવાનું તો છે નહીં, વિચારવાના ક્યાં પૈસા આપવાના છે. થઈ જાય એમાં નથી કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જોતી, નથી કોઈ આવડત જોઈતી. देखो ये आपको भेजा हुआ है ना। ઓકે ઓકે નો Samsung Notes So में entrepreneurship आप Samsung is Notes में open करो। સાયલન્ટ રાઈટ. એન્ટરપ્રેનરો કોઈ વાત જ ના કરે એટલે બોલે જ નહીં એવું સમજીને હું આગળ વધું છું. સ્ટુડન્ટ્સ તો ક્લાસમાં તો બહુ તોફાન નથી કરતા જ હતું, but anyway, now let me tell you, you are all very lucky. Why you are lucky? Because I think what is happening all around the world is entrepreneurial economy. જો કે બધા એમ કહે છે કે this is a problem, there is a financial downtrend, and recession is there, unemployment is there, lot of problem is there. So our experiences and all over the world experiences suggest that whenever there is lot of problem, whenever there is economic problem, I think the entrepreneurship flourishes. એટલે કે જ્યારે વધારે તકલીફ, જ્યારે વધારે પૈસાની મુશ્કેલી હોય, જ્યારે વધારે આગળ બહાર સામાજિક આર્થિક મુશ્કેલીઓ હોય ને જ્યારે ધૂંધળું લાગે, જ્યારે અનસર્ટનિટી લાગે, ત્યારે એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ હંમેશા વધારે ફૂલે ફાલે. And this is the condition today. You know, on one side there is a lot of crisis. War થાય છે, economy થાય છે, આ થાય છે.
And on the other side, there is a lot of innovation happening in all fields, not necessarily in pharma field, education, financial technology, chemical, pharmaceutical, agriculture. Why? Because this economy and the problems are happening. Therefore, those who are entrepreneurial mindset, જેના મગજમાં કંઈ entrepreneurshipનું છે, જેના મગજમાં કંઈ innovation કરવાનું છે, એ આ problem જેવા જોઈએ, તકલીફ જેવા જોઈએ, મુશ્કેલી જેવી જોઈએ, એ તકલીફને મુશ્કેલીને ઓપોર્ચ્યુનિટીમાં કન્વર્ટ કરી નાખીને કંઈક નવો રસ્તો, કંઈક ન્યૂ ટ્રેન્ડ, ન્યૂ પ્રોડક્ટ, ન્યૂ પ્રોસેસ, ન્યૂ સ્ટ્રેટેજી, ન્યૂ વર્કિંગ સ્ટાઇલ, they will find out. And this is what the entrepreneurship is. Entrepreneurs are from this world only. એ કંઈ બહારની દુનિયામાંથી કોઈ ઉપરથી નથી આવતું. આપણામાંથી ને તમારામાંથી જ entrepreneur બને છે. But why you are lucky? Because now there is an entrepreneurial economy. Peter Drucker has said this. There is a rapid evolution of knowledge and technology. નોલેજ એન્ડ ટેકનોલોજી કેવી છે આજે? રોજ બરોજ નવું નોલેજ આવે છે. તમે જે ભણશો, અલ્વિન ટોફલરે કહ્યું છે કે વોટ એવર યુ સ્ટડી ટુડે, બાય ધ ટાઈમ યુ ગો આઉટ ઇન ધ ફિલ્ડ ઇન 4-5 years, everything will become absolute. The new technology is happening, and one of the best example of the technology is the mobile. All of us are having mobile, right? અને સ્ટુડન્ટ તો મોબાઈલની સાથે પ્રેમ થઈ ગયો છે. And I will say that this new technology of mobile has made us slaves. Any adat, એના addict થઈ ગયા છે, including me perhaps. My wife also complains sometimes. Now see, this is the product of the technology. This is the product of the innovation. This is the product of the entrepreneurship. So when you are thinking of doing something new in pharma field or entrepreneurship field or innovation field, think of a product like this. એવી પ્રોડક્ટ, એવી ટેકનોલોજી, એવી પ્રોસેસ બનાવો કે જે લોકોને એનો નશો આવી જાય, લોકોને એની આદત થઈ જાય. They become addicted. તમારી એ પ્રોડક્ટ સિવાય, તમારા એ પ્રોસેસ સિવાય લોકોને ચાલે જ નહીં. This is the beauty of the technology in the new world. And the more important part, whenever we buy this mobile in new model, we buy 50,000 rupees, 1 lakh rupees, within 1 year the prices go down. The feature is better, model is better. So that means entrepreneurs are thinking that whatever is available is fine, but let me do something better than that. વધારે સારી એના ફીચર હોઈ શકે, વધારે સારી ટેકનોલોજી હોઈ શકે, વધારે સારી કસ્ટમર ફ્રેન્ડલી હોઈ શકે. Now this is the entrepreneur thinking. Whenever he see problem, whenever he see technology, he will think કે આને વધારે સારું કેમ કરી શકું. આ ફક્ત ફાર્માસ્યુટિકલનું નોલેજ આવે કે ટેકનિકલ નોલેજ આવે એનાથી નથી થતું. You need to have entrepreneurial mindset. કંઈક હું કરું, કંઈક કરી બતાવું, જુદું હોવું જોઈએ, નવું હોવું જોઈએ. મારી પ્રોડક્ટ લોકો ગાડા થઈને વાપરે અને પછી હું પૈસા લાવું. Now knowledge, I think nowadays customers are more knowledgeable than you. Those days are gone ત્યારે લોકો કસ્ટમરને ઉલ્લુ બનાવીને ગમે એવી પ્રોડક્ટ પકડાવી દેતા. Now you will have to think of the customer first. Your innovation and entrepreneurial mindset has to look at the customer. કે બજારમાં શું ચાલી રહ્યું છે. અનફોર્ચ્યુનેટલી એજ્યુકેશનમાં આપણે ભણતા હોઈએ ત્યારે આપણે ખાલી જ્ઞાન જ મેળવીએ છીએ, પણ આ જ્ઞાન કોણ વાપરનાર છે, કેવા ગ્રાહકો છે, ફેક્ટરીવાળા છે, પેશન્ટ છે, ડોક્ટરો છે, એ જાણીને જ્યારે કરીએ એ entrepreneurial mindset છે. The entrepreneurial mindset think of the market, think of the customer, think of its use, think of its utility. Now all this new technology and knowledge ને લીધે શું થયું છે, તમે બધા ભણો છો, પગાર કરો છો, વધારે પૈસા કમાવા છે, હા, એના આ સમર આઈ આનો તો કોઈ જવાબ મને આપશે. All of you want to earn lot of money. How much money you want to earn per month? Can someone tell me? તમારી ઈચ્છા તો કહો, પછી નોકરી કે કામ મળે કે ના મળે એનો વાંધો નહીં. Anyone can tell me how much money you want to earn? Hello? હા થાય છે. આ 6 વાગે સુધી ચાલશે આ પ્રોગ્રામ. Yes, yes, come on, come on. क्या हुआ? कोई नहीं बोला. પૈસા કમાવા જ નથી બધા, આમ ભણ્યા જ કરવું છે આખી જિંદગી. આપણે તો એવું ના કહેવાય, પપ્પાના પૈસા જ વાપરવાના છે. પૈસા કમાવા છે કે નહીં? हेलो यस सर. कितना पैसा कमाएंगे? कुछ तो बोलो. 1 लाख, 2 सर लाख? हाँ. सर इतना कि मतलब सेल नहीं देखनी पड़े, अगर चाहिए तो वो ले सकें अपना.
इतना तो क्या कितना है रुपया आना में बोलવાનું ભાઈ પૈસા એટલે રૂપિયા આના 1 to 2 lakh. हाँ 1 to 2 लाख पर डे पर मंथ एक दिवस में कि एक महीना में एक महीने में है ना सर अच्छा ठीक है एक महीने में 1-2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जितना भी ताकत है बोल सकते हैं अच्छा ये पैसा कमा के करेंगे क्या आप वो बताइए महीने में 2 लाख आ जाएगा तो क्या करेंगे 5 लाख कमाएंगे चलिए आप एक महीने में 5 लाख कमा रहे हैं क्या करेंगे दिन में 10 बार खाना खाएंगे It based lifestyle. Lifestyle. Yes, sir. This is the right answer. Now, see, all of you, the young people, want to have a new lifestyle. See, and what is new lifestyle? Luxurious car, beautiful clothes, branded shoes, traveling, huh? Beautiful office, beautiful secretary. Huh? Now, see, whatever technology and knowledge we are going to get, and whatever we want to earn, is changing our lifestyle. Think of the new lifestyle. Everybody wants a lifestyle. I was traveling in an auto rickshaw and the driver was wearing a better shirt than me and I asked him कि भाई कहाँ से लाए बोलते शायद वेस्ट एंड से लाया 1200 रुपये का शर्ट है 1500 रुपये का शर्ट even in rural area the young boy the student wants to have a beautiful life now see the new lifestyle is offering tremendous opportunity for you as an entrepreneur if your mind is entrepreneur like if you think like an entrepreneur you can see there is tremendous life entertainment clothing luxury car huh? Health style good education good colleges everywhere so the new product and new technologies are coming because student हम बैठे बैठे काम करना चाहते हैं आसानी से काम करना चाहते हैं सिक्योर काम करना चाहते हैं या see now enterprise think like this so there is a tremendous opportunity in pharmaceutical क्या आप कर सकते हो उसकी बात तो आफ्टरनून में करने वाले हैं सेकंड थिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस अभी इंडिया में जो हो रहा है वो सिर्फ आपके असर नहीं करेगा पूरी दुनिया में जो हो रहा है इमीडिएटली असर करता है the global communication on you are on website you are on mobile आपके हाथ में पूरी दुनिया है तो there was one fellow एक आदमी ब्राजील के बीच पर बैठे बैठे काम कर रहा था और शॉर्ट पहने हुआ था हाथ में बियर पी रहा था और लैपटॉप लेके बैठा था तो हमारे एक प्रोफेसर थे सीके प्रहलाद साहब से मैनेजमेंट के गुरु है उन्होंने जाके उनको पूछा कि भैया क्या कर रहा है सर आई एम डूइंग बिजनेस विद 20 countries sitting on Brazil on computer and my turnover is 3 billion rupees $3 billion I'm sorry you see now the technology communication and global network and digital market is going to allow you to reach the world which is in your hand you don't need new investment you don't need much money you don't need much equipment to do but you need your talent you need your mind you need the new idea you need the new communication right then the finance is also available venture capital fund अब अगर आपके पास आइडिया है तो लोगों के पास पैसा है अब बिजनेस वाले डॉक्टर्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कॉर्पोरेट लेवल के पास पैसा है लेकिन इनको इतनी माथापड़ी नहीं करनी इतना आइडिया नहीं है once you give the idea they are ready to invest 1 crore 2 crore with you but your idea should be such that it will run the new lifestyle the new technology the new product the new something so this is the entrepreneurial economy यही आसपास हो रहा है अब देखिए पूरी कॉलेज के बारे में देखिए हेल्थ के बारे में देखिए गवर्नमेंट के बारे में देखिए सब जगह एंटरप्रेन्योर थिंकिंग चल रहा है एंड व्हाट इज एंटरप्रेन्योर थिंकिंग इफ यू डोंट डिलीवर if you don't perform you are out of this world अगर गवर्नमेंट भी अच्छा काम नहीं करेगी तो लोग फेंक देंगे एजुकेशन में कौन सा इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा है IIM IIT क्यों क्योंकि वो लोग जानते हैं कि कैसा एजुकेशन देना है कैसे अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करना है किस तरह से पढ़ाना है मार्केट में क्या नीड है सो एंटरप्रेन्योर थिंकिंग इज ऑलवेज नोइंग अबाउट द मार्केट एंड डिलीवरिंग द नीड ऑफ द मार्केट इंडिया के बारे में वी आर ऑल वेरी लकी बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ ट्रिमेंडस अनटैप रूरल पोटेंशियल आपको पता नहीं होगा रूरल एरिया में सारी कंपनियां आज जा रही है जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं आज सब रूरल एरिया में हो रहा है एजुकेशन में हेल्थ में मोबाइल की कंपनियां भी यहाँ अर्बन सेंटर से अभी रूरल में जा रही है
एग्रीकल्चर की कंपनियां भी रूरल में जा रही है। हेल्थ का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रूरल में है, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, सर्विस नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। सो लुक एट द रूरल मार्केट। जो 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 प्रहलाद साहब थे उसने कहा था बॉटम ऑफ द पिरामिड, मतलब कि जो पुअर और लो इनकम वाले इतने सारे हैं कि इतना बड़ा मार्केट कोई टैप ही नहीं कर रहा है। क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज बनाए। वो हमेशा कहते थे कि आप लोग आइसक्रीम क्यों 50 रुपए का बनाते हो? If you can make an ice cream of 5 rupees and 10 rupees, look at the way big market is. So now for you also, how do you offer cost-effective services? I think you'll be happy to know Indian health services are one of the most cost-effective. Cost-effective से मतलब अच्छी क्वालिटी भी है और कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए तो ये मेडिकल टूरिज्म में लोग बढ़ते आ रहे हैं। तो इसके कारण पूरी एंटरप्रेन्योर सोसाइटी बन गई है, एस्पिरेशन बन गया। इसीलिए मैं आपको पूछ रहा था आपका एस्पिरेशन क्या है। आप नहीं बता रहे हैं लेकिन मैं आपको बताऊंगा आपका एस्पिरेशन क्या है। अब दैट मींस दैट एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज एन अपॉर्चुनिटी ड्रिवन। जैसे ही आप एंटरप्रेन्योर के बारे में सोचते हैं तो इमीडिएटली आपको लगता है अरे साहब मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो कोई कांटेक्ट नहीं है, मेरे तो फैमिली बिजनेस में नहीं है। तो इसकी कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं। आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है, इफ योर माइंड इज वर्किंग ऑन सम न्यू अपॉर्चुनिटी, आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं बॉम्बे में था, आई वाज गोइंग टू बॉम्बे इन चर्चगेट स्टेशन, और चर्चगेट स्टेशन के बाहर में निकला तो चर्चगेट स्टेशन के बाहर एक बंदा खड़ा था, टूटा फूटा कपड़ा पहने हुए, और उसके पास 3 गाय थी, 3 गाय, काऊ। आपने जैसे गाय माता कही है ना, काऊ। और वो क्या होते हैं, सब लोग को गाय की पूजा करनी होती है तो वो उनको फोडर खावानू कूड़ा आपता हो। तो मैं थोड़ी देर खड़ा रहा तो इतनी देर में तो वहां लोग 20 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपये का पूरा लेके गाय को दे रहा था। गाय तो कुछ खा नहीं रही थी लेकिन सब लगते थे मैंने भी खिलाया, मैंने भी खिलाया। ऐसे विद इन 2 hours दैट फेलो कलेक्टेड अबाउट 2000 to 3000 रुपीज। एंड आई वाज वेरी हैप्पी। आई से ये तो कुछ बहुत बड़ी बात है, चलो यार उससे बात करते हैं। जैसे मैं बात करने गया, साहब मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं तो जाता हूँ, दूसरा मैं काम करता हूँ अभी। तो वो चलने लगा, आई स्टार्टेड वॉकिंग विद हिम। सुनिए ये बहुत अच्छी बात है। तो इसके आगे चलने लगा, थोड़ी देर में वो 1 किलोमीटर जाके आगे गया तो एक आगे झोपड़ पट्टी थी। तो उधर वो गया और उसने वो जो 3 गाय थी वो वहां झोपड़ पट्टी में जो एक महिला रहती थी, एक बूढ़ी सी औरत थी, उसको गाय वापस दे दी और बोला माता जी मैं आपकी गाय सुबह ले गया था, उसका भाड़ा मैं आपको दे रहा हूँ कि आज के आपका एक गाय का भाड़ा 150 रुपया आपने तय किया था, तो मैंने आपको 450 रुपया मैं दे देता हूँ और लीजिए आपकी गाय। और वो चलने लगा। देखिए अब उसके पास नई गाय था, नई कोई जगह थी, नई कुछ था। उसका आइडिया यही थी कि लोगों के दिमाग की धार्मिक भावनाओं को बदल के मैं कैसे पैसा कमाऊं। तो अभी एंटरप्रेन्योर माइंड ऐसा है कि वो ऐसी एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, ऐसी सोच करता है कि जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट नहीं है लेकिन वो लोगों को जो जरूरत है वो पूरी करती है। देन इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू। हम लोग जो माल बेचते हैं तो प्राइस देते हो, वैल्यू होती है। तो एंटरप्रेन्योर हमेशा वैल्यू के बारे में, वो ऐसे नहीं सोचता है मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा वो प्रोडक्ट बनाऊंगा, वो ऐसे सोचता है कि मेरे क्लाइंट को क्या फायदा होगा, उसको क्या मिलने वाला है। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो खाली खाने का पैसा नहीं देते हैं, वहाँ क्या एनवायरमेंट है, क्या म्यूजिक बजता है, कैसी आपको सर्विस मिलती है, हाँ ये सब देखते हैं, कैसा मुखवास मिलता है। देखिए तो अब आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी, आपकी प्रोडक्ट में, आपकी सर्विस में, आपकी हॉस्पिटल में, मैं अभी नाइपर इंस्टीट्यूट है वहाँ ट्रेनिंग के लिए गया था और एवोल्यूशन की बात कर रहा था, इनोवेशन की बात कर रहा था। मैंने वही बोला था कि अब हॉस्पिटल में पेशेंट लोगों को कितनी परेशानी होती है, टाइम नहीं होता है, बैठे रहते हैं, डॉक्टर को आप बुलाते हैं तो टाइम पर नहीं आते, नर्स टाइम पर नहीं आती है, कंप्लेन होती है तो बेल बजाते हैं। अब ये सर्विसेज कैसे सुधारी जाए, होती है क्रिएट वैल्यू करने के लिए। तो एंटरप्रेन्योर का सोचना अपॉर्चुनिटी पर आधारित है। अच्छा सबसे बड़ी बात है, अब आप में से कितने लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कितने लोग एंटरप्रेन्योर की तरफ सोचते हैं, वो मुझे जानना है। अब आपको थोड़ा बोलना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ 4 और 2 6 लोगों का पिक्चर लगाया है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए अगर मेरे पास आप सबका पिक्चर होता, या तो आप सब लोग अगर आपका वीडियो ऑन कर लेते तो मैं देख सकता था, लेकिन सब लोग नहीं करते, कोई बात नहीं, तो मैंने इसलिए पिक्चर लगा दिया। नाउ टेल मी
अगर मैं आपको देखूं, आपसे बात करूं, तो मुझे ये जानना है कि आप में से कितने एंटरप्रेन्योर बनेंगे। तो इसीलिए मैंने ये 6 पिक्चर लगाया है। तो कोई मुझे बता सकता है कि इसमें से कौन एंटरप्रेन्योर बनेगा, कौन एंटरप्रेन्योर की तरह सोचता है? सरदार जी होगा, कि ये रूरल लड़की होगी ऊपर वाली, या बॉबडेर वाली होगी, या ब्लू शर्ट वाला जो बंदा है वो होगा, ये कॉलेज या स्कूल गर्ल जाने वाली लड़की होगी, या कोई आईटी एग्जीक्यूटिव जैसा लड़का है लेफ्ट साइड पर वो होगा? इनमें से कौन एंटरप्रेन्योर बन सकता है, बताइए आप। कोई भी बताइए, फैकल्टी स्टूडेंट कोई भी बता सकता है। All can be entrepreneur. ऑल कैन बिकम। अच्छा, मतलब आप जितने स्टूडेंट हैं आज 50 लोग, सब लोग एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे? Depend Who upon the having the mindset, desire, हाँ, who desire. Pardon, come again. who desire to do or go for the such a way for अच्छा, innovation. डिजायर, ये डिजायर कहाँ से आती है? Mindset. माइंडसेट से। ओके, वेरी गुड। और कोई? अच्छा, तो 2 आंसर है। आपने कहा सब लोग बन सकते हैं, कोई कहेगा एक भी नहीं बनेगा, और कोई कहेगा इसमें से 2 या 3 बनेंगे। 3 आंसर हो गया, ठीक है, 2 नहीं 3 बन गया। अच्छा, ये तो कैसे पता चलेगा कि आप लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे नहीं, या इनमें से एंटरप्रेन्योर बनेगा कि नहीं? क्या उसका टेस्ट क्या होगा, कैसे पता चलेगा, वो कोई बता सकता है? माइंडसेट तो बताया, तो मैं कैसे माइंड को जानूं? कहते हैं ना कि भाई माइंड में तो हस्बैंड वाइफ में कि 10 साल के बाद कहते हैं कि मैं तो अभी भी आपको नहीं पहचानते। हस्बैंड वाइफ में तो माइंडसेट कैसे फिर जानेंगे? आप बात कैसे करते हैं और अच्छा, आप वेरी अपनी चीज दूसरे लोगों को कैसे बताते, ओके, एक तो कम्युनिकेशन, आप आप उसको बात कैसे एक्सप्रेस करते हैं। कैसे करते हैं? हाँ, मतलब जो अच्छा कम्युनिकेट करेगा वो एंटरप्रेन्योर हो सकता है, ऐसा बन सकता है। बन सकता है। ओके, एक तो Yes, sir. कम्युनिकेशन, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से बात करेगा वो शायद माल बेच सकेगा, हाँ, ऐसा कहना है। ओके, वेरी गुड। और कुछ? Positive attitude for every solution and situation and problems. पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम से घबराए नहीं, प्रॉब्लम का सामना करे, उसका सॉल्यूशन लाए। The person who is having good vision. पर्सन हैविंग गुड विजन, वेरी गुड, वेरी गुड। जिनको कहाँ पहुंचना है, क्या करना है, हाँ, जैसे इसीलिए मैंने पूछा 5 साल के बाद, 7 साल के बाद आप कहाँ होंगे, कोई भी नहीं बोला। हम लोग अभी रोज ये करेंगे, पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, करते हैं, लेकिन दूर का सोचने वाला। हाँ, एंटरप्रेन्योर्स डोंट सेट गोल, दे हैव विजन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप सब लोग तो एंटरप्रेन्योर के लिए जानते हैं। तो हम जब एंटरप्रेन्योरशिप का काम करने लगे, 40 साल से करते थे, तो हमने पहले तो अपनी तरफ से कहा था, हमको लगा कि भाई ये एंटरप्रेन्योर जो है वो कैसे पता चलेगा कि इनका माइंड कैसा है। तो अभी काफी कुछ है, लेकिन 2 या 3 चीज है जो मैं आपके साथ बात करूंगा। एक तो सबसे पहला है कि एंटरप्रेन्योर है वो एक अननोन एरिया में जाने के लिए तैयार होता है। अनसर्टेनिटी, एंटरप्रेन्योर को पता नहीं होता है कि मैं सफल रहूंगा कि नहीं, एंटरप्रेन्योर को पता नहीं होता है कि मेरी प्रोडक्ट आगे बढ़ेगी कि नहीं, एंटरप्रेन्योर को पता नहीं है कि मेरी मार्केटिंग होगी कि नहीं। और एंजाइटी और स्ट्रेस, एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट जब एंजाइटी, स्ट्रेस और अनसर्टन और अननोन चीजों के सामने भी टिक पाए, अगर ऐसा बंदा है, ऐसी लड़की है, ऐसा लड़का है, तब वो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तैयार है, ऐसा हम कहते हैं। तो आई ऑलवेज से दैट if you are comfortable in uncomfortable situation, then you are having entrepreneurial mindset. तो हम लोग तो क्या कहते हैं, साहब आरामनी नौकरी જોઈએ, सेफेस જોઈએ, कॉलेजમાંથી કોઈ ગાડી ના મૂકે, कॉलेजમાં પણ આવું જોઈએ, ऐसे मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, हम लोग को सब पक्का चाहिए, कोई अनसर्टेनिटी के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एंटरप्रेन्योर लोग अनसर्टन है, क्योंकि उसको रिस्क लेना पड़ता है, उसको अनसर्टेन में जाके। और वो रिस्क और एंजाइटी और अनसर्टेन में इनको क्यों मजा आता है? क्योंकि इनको पता है कि इसमें से मैं तो निकल जाऊंगा, मेरे पास ऐसी कैपेबिलिटी है। तो इनको इनका विश्वास होता है अपनी कैपेबिलिटी में, अपनी स्किल में, अपनी एबिलिटी में, अपने विजन में, अपने ड्रीम में। इसको इतना विश्वास है कि चाहे कुछ भी बाहर का ना बोले, माता पिता ना बोलेंगे, मार्केट कहेंगे ठीक नहीं है, लोन नहीं मिलेगी, तो भी क्या, मैं कुछ तो छोटे स्केल पर करूंगा, सही से पैसा ला के करूंगा। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट कंडीशनल। मतलब जो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए होते हैं ना, वो कहते हैं कि साहब मुझे लोन दिला दो तो मैं बन जाऊंगा, साहब मुझे आइडिया दे दो मैं कर जाऊंगा,
साहब मुझे मशीन दे दो तो मैं कर जाऊंगा, मुझे कॉलेज के अंदर कुछ जगह दे दो मैं करूँगा। तो दे आर नॉट ओनली गोइंग फॉर एनी कंडीशन, अनकंडीशनल, कुछ भी हो जाए मैं तो करूंगा। तो अनसर्टनिटी इज द फाउंडेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। तो अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप कुछ नई नई जगह में जाओ। ऐसा कहते हैं कि ट्रैकिंग पर जाओ, नए कंट्री में जाओ, नए विलेज में जाओ, तो ये भी एक अनसर्टनिटी है। तो धीरे धीरे मैं जब पहली बार अमेरिका गया था और न्यूयॉर्क की ट्रेन में बैठा तो दैट वाज माय कल्चरल शॉक। मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट से लेके छोटे बड़े सब लोग वहां बैठे, कोई किसकी पड़ी नहीं, कोई नहीं दिखता है। कोई आधे कपड़े पहना है, कोई पूरे कपड़े पहना है, कोई फैशनेबल पहना है, कोई टूटा फूटा पहना है। सब लोग अपना अपना काम करते हैं, कोई किसी के सामने देखता नहीं है। हम लोगों को तो दूसरों की बहुत चिंता रहता अपने। और ज्यादातर लोग बैठते हुए उस टाइम तो पढ़ते थे या तो कुछ काम करते थे, कोई अपने कहते नवरा नौता बेचता। सी दी होल कल्चर, और बाल भी काले पीले लाल सफेद काटे हुए, वो अफ्रीकन वाला स्टाइल, वो कोई मैक्सिकन स्टाइल। देखिए इतना मजा आता है जब अलग अलग कल्चर में हम लोग तो खाने के लिए भी साहब आऊ शाक नहीं भावे, ऐसा दाल नहीं खाएगा, यही खाएगा। ट्राई डिफरेंट फूड, आई हैव ट्राइड इथियोपियन फूड, जापानीज फूड, बर्मीज फूड, वियतनामीज फूड, कंबोडियन फूड। मैं तो 40-50 देशों में गया हूँ, हर जगह खाया है। Now see, once you go to unfamiliar place, unfamiliar people, start learning new languages, unfamiliar thing, नहीं आएगा धीरे धीरे। So this is the way to develop your entrepreneurial mindset. Second is entrepreneurial thinking and behavior. हमने काफी रिसर्च किया है कि कौन एंटरप्रेन्योर बनता है, इनके दिमाग में क्या होता है। हाँ, तो दिमाग जानना तो बहुत मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, वो कैसे बिहेव करता है, क्या करता है। वो हमने जब एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि एंटरप्रेन्योर के दिमाग में एक स्पेशल थिंकिंग होती है। मैं आपको 4-5 स्पेशल थिंकिंग के बारे में कहा, हमने वो पूरा रिसर्च किया है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। लेकिन एक तो एंटरप्रेन्योर क्या सोचता है कि मुझे जो कुछ भी करना है उसका इंफॉर्मेशन सीकिंग एबिलिटी, उनके पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन सीकिंग एबिलिटी होती है। इंफॉर्मेशन सीकिंग एबिलिटी है माहिती मेळवવાની सूझ અને भूख। वो जहां पे भी जाएगा उसको दूसरों की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, मार्केट की इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन, फाइनेंस की इंफॉर्मेशन लेता है, कोई आपके सामने आके नहीं कहने वाला है। तो इनके पास ऐसी थिंकिंग है कि मैं माहिती इंफॉर्मेशन कैसे लूं मार्केट की टेक्नोलॉजी। दूसरा है वो इनिशिएटिव करता है, वो राह देख के नहीं बैठा कि मुझे कोई बोलेगा तू ट्रेनिंग में जा, तू एंटरप्रेन्योर बन, तू ये कर तो करूंगा। वो अपने आप करता है और इनिशिएटिव के साथ परसिस्टेंस, वो छोड़ नहीं देता है। गुजराती में कहते हैं आदू खाई ने पाछल पड़ी गई, जो भी काम लेते हैं वो छोड़ते नहीं है जब तक खत्म नहीं हो जाए। और तीसरा एक थिंकिंग और बिहेवियर है इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेटेजी, मतलब कि लोगों को प्रभावित करना, अपना काम निकालने के लिए क्लाइंट को प्रभावित करना, बैंकर को प्रभावित करना, गवर्नमेंट को प्रभावित करना, टेक्नोलॉजीज को प्रभावित करना, इंटरनेशनल मार्केट में टेंडर के लिए पॉलिटिशियन को प्रभावित करना। हाँ, तो इनका तीसरा है लोगों को कैसे प्रभावित करे ताकि अपना काम कन्विंस करे, प्रभावित करे। तो ये 4 थिंकिंग बिहेवियर, दूसरी 4-5 भी है वो भी मैं कहूंगा। तो ये 3 के बारे में अगर सोचे तो देखिए, आप स्टूडेंट से पहले बच्चे थे, आपके घर में कोई 5-6 साल का बच्चा देखा है आपने, 4-5 साल का बच्चा, अभी तो काफी 3-4 साल की मेरे ग्रैंड डॉटर है, 5 साल की, वो सब कुछ करती है अपने आप, इसको कुछ नहीं कहना पड़ता है, टेक्नोलॉजी कर लेती है, कंप्यूटर भी कर लेती है, ये भी कर लेती है, अपने आप दौड़ती भी है, नया भी करती है, पूछती भी है, और इतना सारा पूछती है मम्मी को कि मम्मी ये तो क्यों नहीं लाई, कब आएगी, क्या करेगी, क्यों नहीं किया, ऑफिस में क्या करती है, मेरे लिए क्यों टाइम नहीं है। तो मम्मी बहुत एकदम से गुस्से हो जाती है और मम्मी कहती है बस अब चुप हो जा। हाँ, तो जैसे मम्मी ने कहा चुप हो जा, तो क्या कहा मम्मी ने, इनकी इंफॉर्मेशन सीकिंग एबिलिटी बंद कर दी। अच्छा, आप बच्चे थे तब आप इन्फ्लुएंसिंग भी करते थे, अपना काम पप्पा से नहीं तो मम्मी से, मम्मी से नहीं तो दादा से, दादा से नहीं तो दादी से, दादी से नहीं तो अंकल से, अंकल से नहीं तो आंटी से, कैसे भी करके अपना काम निकाल लेते थे। बच्चों को देखा है आपने, इतना कन्विंसिंग, और बहुत गुस्से हो जाता है तो क्या करता है, आपको चिपक जाता है और आपको हक करके किसिंग करने लगता है। तो इतना प्रेम में जो मांगता है वो देना पड़ता है। तो आपके सबके अंदर, चाहे आप पटेल हो, मुस्लिम हो, जैन हो, हिंदू हो, अमेरिका में हो, बिहार से हो, महसाणा से हो,
अहमदाबाद से हो, कहीं से भी हो, आपके सबके अंदर ये एंटरप्रेन्योर थिंकिंग है, इंफॉर्मेशन सीकिंग, इनिशिएटिव, पीछे लगे रहना, लोगों को प्रभावित करना। लेकिन धीरे धीरे कॉलेज में आपके दोस्तों के साथ रह के, आपके सोसाइटी में रह के आपकी थिंकिंग ऐसे बदल गई कि जो एंटरप्रेन्योर थिंकिंग वाला माइंड था वो गुजराती में हम कहते हैं ना, उसको जंग लग गया है, काट चढ़ी गई, बद्दी તમારી एंटरप्रेन्योर थिंकिंग की शक्ति और दबाई गई है। अंदर तो छे, आई कैन एश्योर यू बिकॉज़ आई वर्क all over the world with all target group. I know this is there. So the only thing needed is you have to sharpen. એને આપણે ચકમક કરાવવાની છે, જગાવવાની છે। दिवाली का टाइम होता है तो हम बर्तन को क्या नींबू से और आमली से चकचकाते हैं ना, इसी तरह से आपको इसको चकचकाना है, आपको उसको उभरना है। तो ये कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। और तीसरा जो है वो सेल्फ कंसेप्ट, आपको अपने आप में कितना बिलीफ है, अपने आप में कितना कॉन्फिडेंस है, अपने आप पर कितना सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप अपने आप को कितना रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ मैं एक अच्छी कहानी आपको बताऊंगा कि पुराने टाइम में ऐसा था कि जब बिजनेस नहीं था, कुछ नहीं था, तो लोग बिजनेस तो करते ही थे, कॉलेज नहीं था, फिर भी काफी कुछ बिजनेस होता है। इंडिया तो बिजनेस में नंबर 1 था पहले टाइम। तो एक बंदा अपना बिजनेस करके उसका पैसा लेने के लिए एक गांव में गया, उघराणी के लिए गया था, रिकवरी के लिए गया था। तो उस टाइम लगभग 30-40 साल पहले उसका 40,000 रुपये का उघराणी था और 40,000 रुपया लेके वो आ रहा था। When he was coming back with 40,000 rupees, there was one thief, एक चोर की नजर उस पर पड़ गई और वो चोर पैसा ले लेना चाहता था, लेकिन the entrepreneur was at ease और दोनों बस में ट्रैवल कर रहे थे और एंटरप्रेन्योर बैठा हुआ था और चोर ऐसी मौके के लिए वेट कर रहा था, आई विल गेट दैट मनी, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट डू इट एंड बस में पंक्चर हो गया और दोनों को एक साथ में एक रूम में रहने की बारी आई। धर्मशाला थी। तो चोर को लगा कि अब तो रात को ये बंदा सो जाएगा, मैं पूरा उसका पैसा उठा के ले जाऊँ। पूरी रात चोर ने इधर उधर देखा लेकिन उसको कहीं पे भी पैसा नहीं मिला। 2 खटिया थी, दोनों एक ही कमरे में सोए थे, फिर भी इसको नहीं मिला। तो सुबह वो उसके पैर में पड़ गया और बोला, शेठ जी अब ये बताइए कि आपको पता था मैं चोरी कर रहा हूँ, तो इतना तो कम से कम बता दीजिए कि आपने पैसा कहाँ छुपाया था। तो शायद आपने सुना होगा, आपने ग्रैंड मदर से किसी से ये स्टोरी। तो शेठ जी ने कहा कि मैंने ये पैसा तू जहाँ सो गया था वो तकिए के नीचे लगाया था, कि तू तारी पथारी जो होती ये तकिए ने नीचे में संताड़ी दीदेलू तू तेरे पिलो के नीचे, ताकि मुझे पता था कि तू तेरे पास में जो पिलो है उसमें कुछ नहीं देखेगा, आके मेरे आसपास ही देखेगा कहाँ पड़ा है। मेरे कोट में देखा, मेरे जूते में देखा, मेरी बैग में देखा, मेरे शर्ट में देखा, तो भी तेरे को नहीं मिला। तो कहना का मतलब ये है कि हम लोग हमेशा सब चीज बाहर मिलेगी ऐसा ढूंढते, अपने अंदर खजाना पड़ा हुआ है, आपके अंदर बड़ा खजाना पड़ा है, एंटरप्रेन्योर का पड़ा है, इनोवेशन का पड़ा है। कम से कम उसको टटोरने की, ढूंढने की तो कोशिश करिए। आप ताज्जुब हो जाएंगे कि आपके अंदर क्या है। बाहर नहीं मिलेगा, अंदर ही मिलेगा, ऐसा बोलते हैं। Identify your own strength. Try to identify your own liking. Try to identify your own passion and see how you're going to work. So this is what is entrepreneurship. So entrepreneurial thinking क्या है? कोई बात नहीं है। आप इमेजिन दी एंड कि मुझे मल्टी करोड़ बनता है, मुझे यूनिकॉर्न बनना है, मुझे सबसे अच्छा जीवन जीना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे ये करना है। सो इमेजिन दी वर्ल्ड एंड देन क्रिएट द मीन्स। वहाँ कैसे पहुँचना है, जैसे कहते हैं ना मुझे चांद पे जाना है तो क्या करना होगा, उसके पास अभी एक सीट बुक करा दो तो आपको चांद पे ले जाएगा। अब तो मार्स पे जाने की भी बात हो रही है, अब तो ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल। इसी तरह से आपकी थिंकिंग, आपका विजन, आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं वो अगर क्लैरिटी होगी तो हो जाएगा। अच्छा, ये फार्मास्यूटिकल बारे में नहीं है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि फार्मा के स्टूडेंट में भी कम से कम टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं देखूं तो आपके पास टेक्निकल स्किल है, एनालिटिकल स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आप टेक्नो सेवी भी है, तो आप तो पूरे एंटरप्रेन्योर बने हुए। लेकिन क्या नहीं है आपके पास? नो मार्केट और कमर्शियल एक्सपोजर। तो एज एन एंटरप्रेन्योर डेवलप योर माइंड विच इज कॉल्ड मार्केट ओरिएंटेशन। आप अपने माइंड को टेक्नोलॉजी, एनालिटिकल प्रॉब्लम में तो है, आप अच्छी तरह से पढ़ाते हैं आपकी कॉलेज में, मैं जानता हूँ, लेकिन मार्केट और कमर्शियल मतलब धंधा की एक्सपोजर हो तो आप क्या करेंगे? बाहर जाके देखिए, हॉस्पिटल में जाइए, शॉप में जाइए, एंटरप्रेन्योर को मिलिए, बिजनेसमैन को मिलिए, ट्रेडर को मिलिए। जरूरी नहीं है फार्मास्यूटिकल वाले ट्रेडर को मिलेंगे, कोई भी बिजनेसमैन को मिल सकते हैं। चलो मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ,
जाके कोई भी एक सबसे अच्छा बिजनेस है आपके एरिया में, हाँ, कोई नाम लीजिए खाने वाले का, हवानी हो जाएगा, कि कोई हमर वाला हो जाएगा, कोई चाय वाला हो जाएगा, कोई दुकान वाला हो जाएगा, कोई कपड़े वाला, इनके पास जाके आप खाली इसका इंटरव्यू करके आइए और देखिए वो कैसे बिजनेस करता है, देखिए आपको पूरी एंटरप्रेन्योर थिंकिंग मिल जाएगी। देन व्हेन यू डू इनोवेशन फार्मास्यूटिकल में या तो इसमें क्या होता है, आप लोग अपने प्रोडक्ट के लव में पड़ जाते हैं, यू फॉल इन लव विथ योर प्रोडक्ट। मोस्ट ऑफ द टेक्निकल पीपल, इंजीनियर, फार्मास्यूटिकल, आईटी पीपल, दे फॉल इन लव। और आपको पता है जब आप प्रेम में हो जाते हैं, लव में हो जाते हैं, तो अंधे हो जाता है, फिर कुछ दिखता नहीं, जो लड़की बोले वो सही, बस उसके पीछे पागल हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट के लव में हो जाएंगे, एंटरप्रेन्योर थिंकिंग इज नॉट ओनली थिंकिंग ऑफ प्रोडक्ट, एंटरप्रेन्योर थिंकिंग इज थिंकिंग ऑफ सक्सेस, थिंकिंग ऑफ मार्केट, thinking of commercial success, thinking of government, thinking of export, thinking of formalities, thinking of finance. So if you think only of product, you will never succeed. This is not entrepreneurial thinking. Then you don't have any financial wisdom. आपको पैसा कमाना है, लोन लेनी है, लेकिन इसका उपयोग क्या करेंगे, कैसे लोन लेंगे। हम हमेशा कहते हैं कि भगवान के पास हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन कैसे मांगना है वो नहीं पता है, तो भगवान क्या देगा। जब तक आप स्पेसिफिकली, अगर आपको कार चाहिए तो ऐसा नहीं बोलेंगे साहब भगवान मुझे कार दे दीजिए, आपको क्या कहना है, मुझे होंडा चाहिए, ब्लैक कलर की चाहिए, इसका व्हील ऐसा होना चाहिए, इसकी आउटर ऐसा होना चाहिए, इसकी टेपेस्ट्री इस रंग की होनी चाहिए, ये साइज के व्हील होने चाहिए, इसका कलर, ये पूरा स्पेसिफिकेशन जब आप बताएंगे तभी तो भगवान दे पाएंगे। इसी तरह से पैसा लेने के लिए भी आपको क्या क्या जरूरत है, क्यों पैसा चाहिए, कब चाहिए, किसके लिए चाहिए, वो नहीं बताएंगे, और वो पैसा लेके आप सफल होंगे कि नहीं, तब तक कौन पैसा पाए। तो एंटरप्रेन्योर थिंकिंग इज थिंकिंग। देखो एंटरप्रेन्योर थिंकिंग क्या है, अलग अलग होती है। जब एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो पहले कस्टमर की थिंकिंग करते हैं, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट ढूंढना है। फिर बैंकिंग की थिंकिंग सोचते हैं, जो पैसा देता है उसका थिंकिंग क्या है, ताकि मुझे लोन मिल जाए, हाँ। फिर वर्कर की थिंकिंग देखते हैं, मुझे लोगों से काम लेगा है तो वर्कर कैसे सोचता है, तो एंटरप्रेन्योर थिंकिंग इज मूविंग। एंड देन लैक ऑफ बिजनेस विजन, जैसे बताया गया था, विजन क्या है, फार्मा बिजनेस कहाँ जा रहा है, हेल्थ में क्या प्रॉब्लम होने वाला है, कौन सी प्रायोरिटी होने वाली है, अब क्या डिसीज होने वाला है, कौन सी एरियाज में कैसे टारगेट ग्रुप, रूरल लोग होंगे, महिला ज़्यादा होगी, सीनियर सिटीजन ज़्यादा होंगे, बच्चे में ज़्यादा होंगे, पीडियाट्रिशियन में ज़्यादा हो, ये सोच के करेंगे बिजनेस विजन। 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में सोच रहे हैं। आज का बिजनेस नहीं। देखो हम वो रामायण में आता था ना, पुष्पक विमान, सुना है पुष्पक विमान के बारे में? तो पुष्पक विमान के बारे में कितने साल पहले सोचा था। तो एंटरप्रेन्योर थिंकिंग इज ऑलवेज अहेड ऑफ मार्केट एंड अहेड ऑफ पीपल। आपकी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए कि कहाँ पहुंचेंगे आप, हाँ, दुनिया को कहाँ पहुंचाने वाले हैं। जो मैंने कहा था, आपका एस्पिरेशन क्या है, ड्रीम क्या है, कुछ नया करना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, एंड आई वांट टू डू सम, एक रूटीन काम मुझे नहीं, ये आपके एस्पिरेशन है, उसका मुझे पता है। मैं करीब कितनी सारी कॉलेज में गया हूँ, जैसे बता था, और इनका आपके ड्रीम भी है कि मैं टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव बन जाऊंगा, मैं टॉप मोस्ट एंटरप्रेन्योर, मैं पूरी दुनिया में नाम कमाऊंगा। आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, बट समटाइम्स एंटरप्रेन्योर थिंकिंग इज नॉट ओनली ड्रीमिंग, इट शुड नॉट बी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। मैं जो कर सकूं ऐसा कुछ सोचूं। अनरियलिस्टिक मतलब बड़ा सोचिए, बड़ा सोचने में कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन वो पहुंच पाऊंगा, कर पाऊंगा, वो भी एंटरप्रेन्योर है। देन यू आर नॉट फ्यूचर रेडी। जैसे मैंने कहा, आज का नहीं सोचिए, 5 साल का, 10 साल, क्योंकि 10 साल में, 5 साल में, जैसे मैंने बताया, टेक्नोलॉजी बदलने वाली है, कम्युनिकेशन बदलने वाली है, लोगों की प्रेफरेंस। देखिए हम जो मानते थे, जानते थे, अब आपकी यूथ क्या चाहती है, नई नई चीजें चाहती है, अच्छा जॉब चाहती है, चैलेंज चाहती है, कंप्यूटर चाहती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहती है। आपसे जो छोटे हैं, अब वो जब बाजार में आएंगे तब क्या चाहते होंगे, आपको भी नहीं बताए। तो आपको ऐसी दुनिया से काम करना है, तो बी फ्यूचर रेडी। लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ आउटर वर्ल्ड, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, आप अपनी दुनिया में मस्त है, कॉलेज कैंटीन में मस्ती करो, लड़कियों के साथ फेस्टिवल करो, पिक्चर देखो, देखो, ये भी करो, ये आपकी टाइम है, वो करो, लेकिन साथ में बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है
वो भी देखिए। लैक ऑफ एफर्ट टू एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटी, और खाली एक दो अपॉर्चुनिटी, कितनी सारी अपॉर्चुनिटी पड़ी है। और मैं हमेशा कहता हूँ जैसे मैंने चश्मा पहना है, आपको नया चश्मा पहनना पड़ेगा नई नई अपॉर्चुनिटी देखने के लिए। अच्छा, जब हम थोड़ी बेसिक बातें कर लें, एंटरप्रेन्योर थिंकिंग की बात तो हमने कर ली, लेकिन कैसे 3 ई है। एक है एंटरप्रेन्योर, मतलब कि आप व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है, चाहती है। आप फार्मा स्टूडेंट है, बी फार्म स्टूडेंट है, एम फार्म स्टूडेंट है, तो आप एंटरप्रेन्योर है। लेकिन आपके पास एजुकेशन क्या है, आपकी माइंडसेट क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका फैमिली क्या है, वो सब एंटरप्रेन्योर में आ गया। अब सवाल है आप क्या करेंगे, कौन सा बिजनेस करेंगे। आप फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में जाएंगे, आप कोई दवाई बनाएंगे, कुछ कैंसर रिलेटेड रिसर्च करेंगे, कुछ लॉजिस्टिक में जाएंगे, कुछ पैकेजिंग में जाएंगे, कुछ सर्विस करेंगे, कुछ आईपीआर में जाएंगे। तो ये एंटरप्राइज मतलब कि एंटरप्रेन्योर क्या करना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। इट कैन बी मैन्युफैक्चरिंग, इट कैन बी सर्विस, इट कैन बी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, इट कैन बी डिजिटल मार्केटिंग, एनीथिंग। सो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइज, और ये दोनों किसमें कर रहे हैं, एनवायरमेंट। किसका एनवायरमेंट, आपका भी एनवायरमेंट कैसा है, आपकी फैमिली का एनवायरमेंट कैसा है, आपके गांव के अंदर एनवायरमेंट कैसा है, कल्चर सोसाइटी में एनवायरमेंट कैसा है। और एंटरप्राइज के लिए अब जो एनवायरमेंट है, टेक्नोलॉजी कैसा है, मार्केट कैसा है, गवर्नमेंट रूल्स कैसा है। तो ये तीन तीन मिलते हैं तब एंटरप्रेन्योर माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट होती है। तो अब आप मुझे बताइए कि आप शुरू कहाँ से करेंगे, एंटरप्रेन्योर से करेंगे। और दूसरी बात मैं बताऊं कि एंटरप्रेन्योर थिंकिंग जो है वो सफलता के लिए सोचता है, सिर्फ उद्योग के लिए। आपके स्टार्टअप में प्रॉब्लम क्या है, आप लोग कहीं भी नया कर दूंगा, ये कर दूंगा। मैंने अभी लास्ट टाइम प्रोग्राम चलाया था, तो उसके लड़कियों ने बहुत अच्छा काम किया है। वो एक स्प्रे बनाया है वो मेंस्ट्रुएशन टाइम पर पेन कम करने के लिए, किसी ने कोकोनट से एक स्किन का डिसीज का बनाया है। तो वंडरफुल एंटरप्राइज, बट एनवायरमेंट और फ्यूचर सक्सेस के लिए अभी आगे सोचना है। तो ये इनमें से तीन में से कौन सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज, मतलब कि एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट और एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी जो बिजनेस कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, या एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है, कौन कहेगा। एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट कौन देखेगा, एनवायरमेंट कैसा है, अच्छा है कि नहीं, वो किसको देखना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर को। एंटरप्रेन्योर को। और किसके लिए देखेगा वो एनवायरमेंट अच्छा है कि बुरा है, कौन सा बिजनेस करना है इसके लिए, राइट, एंटरप्राइज। एंटरप्राइज के लिए। हाँ, so no one thing is important, all three things go one hand in hand। जैसे आप एंटरप्रेन्योर का सोचेंगे, इमीडिएटली खाया जाएगा, साहब ये कहाँ से बिजनेस करूँ, जैसे बिजनेस करेगा कौन सा बिजनेस करो, तो कहेंगे साहब नहीं, एनवायरमेंट में तो अभी ये तो प्रोडक्ट नहीं चल रहा है। सो योर माइंड इज मूविंग फ्रॉम एंटरप्रेन्योर टू एनवायरमेंट टू एंटरप्राइज, एनवायरमेंट टू एंटरप्राइज, एंटरप्राइज टू एनवायरमेंट टू एंटरप्राइज। तीनों से अंदर इटरेशन, एक ही बीजा तरफ जाएगी ने गोल मैरी गो राउंड जाएगा। और जब तीनों में मैचिंग हो जाएगा, जब तीनों में आपको कुछ मिलेगा, तभी एंटरप्रेन्योर बनेगा, तभी द बर्थ ऑफ एंटरप्रेन्योर विल टेक प्लेस। So my request to all of you as an entrepreneur, start thinking and knowing about various industry। अच्छा, दूसरी चीज में हमेशा वो नाइपर में भी बताई कि आप अगर फार्मा इंडस्ट्री में है, तो इसका मतलब ये नहीं आप एंटरप्राइज और इंडस्ट्री सिर्फ फार्मा के बारे में ही सोचिए। आपको लॉजिस्टिक के बारे में भी सोचना है, पैकेजिंग के बारे में भी सोचना है, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी सोचना है, केमिकल इंडस्ट्री के बारे में भी सोचना है कि इसमें क्या हो रहा है, इसकी असर फार्मा पे क्या होगी। हाँ? तो एनवायरमेंट में नई टेक्नोलॉजी क्या है, नई पॉलिसी क्या है, ये भी देखना है। तो थिंक लाउडली। तो जैसे खाना पकाते टाइम कितना मिर्ची डालना है, कितने नमक डालना है, करना है, तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप कितना बिजनेस कर सकते हैं, और कौन सा एनवायरमेंट में आप सफल रहेंगे, वो आपको ढूंढना होगा। कितनी भी एडवाइस करेंगे लेकिन वो काम नहीं है। ये एग्जाम्पल ये देख रहे हैं आप, क्या है, क्या है ये, कोई बता सकता है। ऑल। ये मोती है, मोती। ऑल कैसे बनता है पता है, एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, वो पानी के अंदर, दरिया के अंदर, ये शिप के अंदर बनाता है। इतना छोटा एक इंसेक्ट है, वो इतना अच्छा पर्ल, रियल पर्ल, और इसकी कीमत क्या होती है,
हजारों लाखों, समटाइम तो हजारों लाखों में हो जाती है। आप भी एक ऐसे छोटे से व्यक्ति है, छोटे से इंसेक्ट है, लेकिन आप भी ऐसे मोती की तरह चमक सकते हैं अगर आप अच्छी तरह से अपना दिल लगा के काम करो। एनवायरमेंट की कोई असर नहीं होती, आपका माइंडसेट, आपका मनोबल अगर कीजिए। उसके लिए क्या करना होगा वो भी बता दूं। सबसे जरूरी है अपने आप को इंस्पायर करना। माइंडसेट और एंटरप्रेन्योर इज मोटिवेटेड बाय देमसेल्फ। कोई उसको क्या इंस्पायर करेंगे, अंदर से इंस्पायर होते हैं, जो काम करते हैं, बिलीव करते हैं, ड्रीम करते हैं, इमेजिन करते हैं, अपने काम को लव करते हैं, एंजॉय करते हैं, हाँ? जो भी काम दिया वो फिनिश करते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्क करते हैं। तो ये इंस्पायर करना मतलब कि अब आप काम करने जाएंगे, सोचेंगे और लोग कहेंगे ये तो नहीं हो सकता यार, पैसा तो है नहीं, लोन तो है नहीं, शुरू तो आपके फादर मदर से ही हो जाएगा। तो इसके बारे में एक बात बताऊं, मैं हमेशा हर एक ट्रेनिंग में बता ही रहा हूँ, ये शायद रिपीट होगा किसी के लिए, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आई थी। जो ब्रह्मा कुमारी की शिवानी है, उन्होंने कहा था कि हम लोग, हमारा जो मोबाइल होता है उसको रोज चार्ज करते हैं। आप लोग रोज चार्ज करते हैं, कई लोग तो 2-2 बार चार्ज करते हैं। मैं एयरपोर्ट जाता हूँ तो वहाँ लोग की लाइन लगी होती है, साहब आपका खत्म हो गया तो मैं वो प्लग में मेरा मोबाइल चार्ज कर दूँ। आप लोग भी रोज मोबाइल चार्ज करते हैं। तो ये शिवानी जी कहती है कि आप अपना इंस्ट्रूमेंट, टेक्नोलॉजी, लैपटॉप हर रोज 1 या 2 बार तो चार्ज करते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि आप अपने आप को कुछ हासिल करने के लिए, कुछ इनोवेट करने के लिए, कुछ नया करने के लिए कितनी बार चार्ज करते हैं, कितनी बार इंस्पायर करते हैं? महीने में एक बार, साल में एक बार? नहीं माय डियर फ्रेंड, यू विल हैव टू इंस्पायर एंड चार्ज योरसेल्फ डेली। ये आपके विचार, आपका माइंड से रोज बरोज चलना चाहिए। ये मैं कर लूंगा, वो मैं कर लूंगा, इसके पीछे पड़ जाऊंगा। थोड़ा किसी का आइडिया नेगेटिव आ जाए तो फिर से किसी की पॉजिटिव एडवाइस लेके, किसी को अच्छे को मिलके। तो इसीलिए कहते हैं कि आप ऐसे लोगों के पास रहिए जो आपको इंस्पायर करे, आपके रोल मॉडल हो, आपको लगे तो ये तो बहुत अच्छा काम करे। ऐसे दोस्तों के साथ रहिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए, ऐसे लोगों को मिलिए। तो ये एक इंस्पायर की बात है। दूसरा है कि लर्निंग। एंटरप्रेन्योर हमेशा नई नई चीज सीखता है। कैसे सीखता है? लोगों से सीखता है, एक्सपेरिमेंट से सीखता है, ऑब्जर्वेशन से सीखता है, किसी को सिखाते सीखता है। एक मेरा दोस्त था, वो कुछ पढ़ता नहीं था, वो दूसरों को सिखाता था इंजीनियरिंग में और सीख जाता था। जो सीखता है वो यूज करता है। हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, वो सीधा नोटबुक में लिख देते, कभी जाके फील्ड में यूज किया कि ये पढ़ाया तो क्या होगा क्या होगा। तो अप्लाई लर्निंग, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अपना गाय भैंस की बात करी ना, आपने भैंस को देखा है पानी में बैठे हुए? जब वो खाना खा के भैंस पानी में बैठते तो चबाती है, આપણે ગુજરાતીમાં જેને કહેવાય વાગોળે છે। तो लर्निंग मीन्स वॉट एवर नॉलेज यू गेन, इसको अगर आप चबाएंगे, इसको समझेंगे, अपने आप पे अप्लाई करेंगे, इसको एप्लीकेशन करेंगे, तभी वो लर्निंग आएगा। छोटा बच्चा होता है, वो कोई नई चीज सीखता है तो हमेशा अप्लाई करता है। कोई नवो शब्द सीख के तो जहाँ आवे थे वापरी नाखे, फिर मम्मी पापा कहते हैं ये बराबर नहीं है, तब आ जाएगा, लेकिन वो अप्लाई करता है। तो वॉट एवर यू लर्न बाय ऑब्जर्वेशन, बाय अप्लाइंग, बाय एक्सपेरिमेंटिंग, बाय रिपीटिंग, बाय रिफ्लेक्टिंग। तो आप जो भी रोज कर रहे हैं, वो चाहे फ्रेंड के साथ हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे टीवी देख के हो, चाहे प्रोफेसर के साथ हो, खाली क्लासरूम के नहीं, क्लासरूम के बाहर हो, तो आप लर्न करते जाइए। और दूसरा है जो स्किल और एटीट्यूड हमने बताया। तो कैसी स्किल एटीट्यूड होनी चाहिए? आज के जमाने में 4 या 5, 2-4 मिनट में मैं खत्म हो रहा, स्किल जो अवेलेबल है, जैसे मैंने 25 में कहा, इसमें है एक तो लीडरशिप एंड सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया से भी, लेकिन सोशल इन्फ्लुएंस मतलब समाज में आपकी क्या इमेज है, क्या क्रेडिबिलिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। पहले चोरी करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एथिकल मैनेजमेंट कोर्स इज द मोस्ट टॉप मैनेजमेंट। यंग लोगों में अब अच्छी तरह से बिजनेस करने की बहुत है। टेक्नोलॉजी यूज, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, टेक्नोलॉजी तो आने वाली है। टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग, रेजिलियंस, रेजिलियंस मतलब कि फेलियर होने के बाद भी खड़े होने की ताकत, स्ट्रेस टॉलरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आज कोरोना के बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि आप कितनी जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी एडॉप्ट कर लेते हैं, पुरानी चीजें छोड़ के नई चैलेंजेस कैसे एडॉप्ट करते हैं। रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आइडिएशन, एनालिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन, एक्टिव लर्निंग एंड लर्निंग स्ट्रेटेजी, जो मैंने बताया
नई नई चीजें सीख के कैसे सीखना है, कहाँ से सीखना है, कैसे उसको अप्लाई करना है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम तो इसको आएंगे लेकिन इसका सॉल्यूशन में कैसे निकालूं। क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस, क्रिएटिविटी, ओरिजिनल एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी इज द मदर ऑफ इनोवेशन, तो इसीलिए क्रिएटिविटी, इनोवेशन। तो ये नई स्किल, अब ये सब आप नहीं कर सकते, इसमें कोई एक या दो स्किल अगर आप डेवलप करेंगे तो यू कैन बी ऑन टॉप। और आपकी कैरियर एस्पिरेशन क्या है, जॉब करना है तो कैरियर एक्सप्लोरेशन करिए। आप एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, फिर कैरियर के लिए प्रिपरेशन करिए, कैरियर का विजन करिए। मेरे पास टाइम नहीं है वीडियो दिखाने का। ओके, सो आई थिंक आई वुड लाइक टू शो सम अदर अचीवर्स। ये जानते हैं सब कैसे अचीवर बने, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। मैरी कॉम है, ऐश्वर्या, ये प्रियंका है, कोहली भाग है। अब तो बेचारे कोहली का तो खराब दिन चल रहा है, लेकिन बिजनेस में भी होने अप्स एंड डाउन होने वाला है। तो यू आर योर ओन अचीवर्स माय डियर फ्रेंड, एंड इट इज योर एटीट्यूड नॉट योर एप्टीट्यूड, इट इज योर माइंडसेट दैट विल डिटरमाइन योर ऑल्टीट्यूड। मतलब आप कितनी हाइट पर जाएंगे वो आपका एटीट्यूड एंड माइंडसेट तय करने वाला है। और लास्ट में आई वुड लाइक टू से, अगर खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि मैं पास नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, ये कर नहीं पाऊंगा, हम खुद से हार जाते हैं। नेवर एक्सेप्ट डिफीट विद इन। आप फाइट करिए, देखिए दुनिया बहुत अच्छी है, कुछ कर पाएंगे। मैं समझता हूँ फार्मास्यूटिकल अरिहंत में जो आपको बैकग्राउंड मिले हैं, जो फैकल्टी है, जो एनवायरमेंट कितना अच्छा है, इसका पूरा लाभ उठाइए। तो आपका पूरा माइंडसेट, आपकी पूरी सोच बदल लीजिए। लास्ट में मैं कहूंगा कि आप जब कॉलेज के बाहर बातें करते हैं, कैंटीन में बैठते हैं, तो कुछ नई बातें करो, कुछ नया जानने की कोशिश करो, इनोवेशन की बातें करो, एंटरप्रेन्योरशिप की बातें करो, सक्सेस की बातें करो, फेलियर की बातें करो, टेक्नोलॉजी की बातें करो, इंडस्ट्री की बातें करो। देखिए कितनी मजा आएगी। आई थिंक दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू एज फार एज द एंटरप्रेन्योर माइंडसेट इज कंसर्न्ड। I think in the next session they are going to do the Yes, sir. Thank you very much, sir, for your valuable guidance regarding to entrepreneurship. Sir has described very well about entrepreneurship opportunity driven and creative value by combined resources. How to develop entrepreneurship mindset, that also described very well by the sir. Sir have also discussed about comfortable who can become entrepreneurship, who having the ability to be comfortable in uncomfortable zone. That is one of the main thing. The next thing that sir has discussed about entrepreneurship dynamic by combination of 3E, like entrepreneur, enterprise, and environment. Sir has also give us one message about believe in dreams, inspire yourself, and learning are the main key points to develop your entrepreneurship. very good. So, Okay, so I wish all you the best of the luck, and anytime anybody is interested in having any guidance, any mentoring, I'll be very happy to help any student who is watching or something. And anyone has anything anybody want to share or ask, welcome. Otherwise, the time is over. if any student have any queries, then you can ask. Kuch kehvu hoy, kuch puchhu hoy, to most welcome. Yes. Students like him, sir. मुझे नहीं है, मुझे पता है, कोई बात नहीं, वो लोग इंटरेस्ट लेते हैं सर। स्टार्टअप के लिए तो रोज मिल जाते हैं, बोलते हैं हमें ये करना है, हमारे पास ये आइडिया है। नहीं। और वो ऑनलाइन थोड़ा हेजिटेट होते हैं सर। ऑनलाइन में थोड़ी लिमिटेशन है। Anyway, but I wish you all the best, and thank you for providing me this opportunity. And anytime, any help required, I'll be happy. Thank you. Thank you for your support. Thank you, sir. Thank you, sir. और next session चालू થાય છે? Yes, sir. Yes, sir. I'll be there for 20 minutes. Okay, so good evening,
all of you present faculty member, participants of our today's session, as well as our today's eminent speaker, Srinivas Salvi sir. The next lecture of Institution Innovation Council Impact Lecture Series on IPR Innovation, Startup and Entrepreneurship is Innovation by Mr. Srinivas Salvi sir, CEO AIC LMCP. Which is the and he is the CEO of this foundation and Atal Incubation Center, focusing on pharmaceutical and healthcare